حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے یہ اجتماع ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بڑا کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف سنی ہے جو 4000 کا نعرہ بھی کھل کر لگاتا ہے اور نعرہ حیدری اور یا علی کھل کے لگاتا ہے۔ امام حسین کا شہادت کا تھوڑا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت ہمارے یہاں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے اور ان کا خاندان بڑی تکلیف میں تھا کہ جلدی کرب و بلا سے نکلا جائے۔ حالانکہ اس دھرتی پر، اس کائنات پر صبر، شجاعت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ پریشان تھے، اس طرح کے امام حسین کے بارے میں بیان سنا کر لوگوں کو اس طرح کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعی کربلا رونے دھونے کا واقعہ ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کے لشکر جو امام حسین کے مقابلے آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی۔ کتنی تھی؟ 72، اور یزید نے 22,000 سپاہی بھیجا۔ اچھا مجھے بتائیے 22,000 اور 72 کے بیچ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد پھر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، 22,000 سپاہی زیادہ تھوڑے ہیں، کچھ سپاہی زیادہ بھیج۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ 72 کے لشکر کے لیے تجھے 22,000 سپاہی دیے ہیں، اب کتنا بھیجے؟ تو عمر بن سعد کہنے لگا شاید تمہیں یہ پتا نہیں کہ یہ لوگ کون ہے، یہ مولا علی شیر خدا کے اولاد ہے، ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے کہ 1,000 کو اکیلا سنبھال سکتا ہے۔ یہاں کمزوریاں دکھائی جاتی ہے اور اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہو۔ حالانکہ امام حسین دلیر کا نام ہے، واقعی کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنے بات اصل میں کیا تھی، بڑے آرام سے میرے باتوں کو سمجھیے گا۔ جب امام حسین جناب امیر معاویہ کے پاس موجود تھے تو لوگوں نے یزید کے بارے میں جناب امیر معاویہ سے کہا یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، بہادر ہے، دلیر ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو یزید کے خوشامد کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیتے تو آپ نے یزید کو بلوایا، بلا کر فرمائے 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائے تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائے جناب امیر معاویہ نے۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا تو اس نے دیکھا کہ میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پر عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میری بیعت کرے۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی اس کے بارے میں بھی جان لے کیا ہوتی تھی۔ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ اور رسول کا حلف دیتا ہوں کہ یزید کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا۔ یزید نے کہا عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین کو بھی بلاؤ اور کہو میری بیعت کرے۔ امام حسین آدھی رات کو بیٹھے تھے مسجد نبی میں، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، جناب عبداللہ ابن عباس تھے۔ تو ولید نے ایک بندہ بھیجا، اس نے آ کر کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کا بات سمجھ نہیں آئی۔ تو امام حسین کہنے لگے اے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کا بیعت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ آدھی رات کو نہ جائے، آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین نے فرمائے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا، حسین کو خطرہ نہیں ہوتا، کہے پھر بھی مہربانی کرے ذرا اتحاد سے جائے،
तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, कुल 14 बंदे ने नेजे लेकर, तलवारें लेकर हजरत इमाम हुसैन के साथ गए। इमाम हुसैन उन 14 बंदों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। उसने बताया कि जनाबे अमीर माविया इंतकाल कर गए, आपको यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, मैं छुप कर बैत नहीं करूंगा। मजमा लगाओ जुमे वाले दिन का, ऐलान करो, जो तरीका है अबू बकर सिद्दीकी का, जो तरीका है हजरत उमर फारूक का, जो अंदाज हजरत गनी का है, जो मौला अली का है। सरेआम ऐलान करो, अगर सारी दुनिया यजीद का बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूँ। तुम मुझसे बैत लेकर लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत कर रहे, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आम आदमी नहीं हूँ, छुप कर बैत नहीं करता। वलीद बड़ा नरम दिल आदमी था और इमाम हुसैन का शान को जानता था। उसने कहा कि मुझे तो बस हुक्म था, बाकी आप हुजूर के नवासे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता। वहाँ एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा था, अब्दुल मलक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा, अगर आज हुसैन तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो तुम्हारे लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इन्हें जाने मत देना। इनसे बैत कराओ या इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा के कानों में आवाज गई तो फरमाए, अगर तेरे अंदर जरूरत है तो आज सामने हुसैन का, कानों में बात ना कर, कानाफूसी ना कर, आ बाहर मैदान में। मैं तुझे अभी बताता हूँ कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। यह कहकर इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन हनीफिया को बुलाए। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाए, ये मसला है, अब क्या करना है? तो वो लोग कहने लगे, हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करे, यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिसे मुशौरतें कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अगर तुम मुशौरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है। तो कहने लगे, आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े और फरमाने लगे, मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने के हुर्मत को पमाल होने नहीं दूंगा। जब इमाम हुसैन निकले तो जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर हुजूर का रोजा देखने लगे। नन्ना तेरे करम के खजीने का खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने का खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। जब इमाम हुसैन वहाँ पहुँचे तो कूफे से खत आने लगे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और यजीद हमारे ऊपर मुसलत हो गया है। अगर आप मैदान में नहीं आएंगे तो हम अल्लाह के बरगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारे कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। वो खत एक दो नहीं थे, वो खत इतने थे कि 3 बोरियां भरे थे। इमाम हुसैन मक्के में लोगों को जमा किए, मशवरे के लिए। सब ने कहा, हुजूर वो बुला तो रहे हैं, पर अपने वादे के पक्के बहुत कम लोग होते हैं। हर बंदे ने कहा आप ना जाए, लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, दीन के खिलाफ गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। इमाम हुसैन कहने लगे, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले या ना चले, लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। लेकिन सबने इमाम हुसैन को जाने का इजाजत नहीं दिए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, चलो एक काम करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ जो अली के भतीजे हैं। उनको कूफा भेजा गया। जब वो कूफे पहुँचे तो कूफे पर जनाब नवन बिन बशीर की हुकूमत थी। जब आप यहाँ पहुँचे तो नवन बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो लोग उनकी बैत करने दौड़े। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 लोगों ने बैत कर लिए। 2-4 दिन में 40,000 लोगों ने बैत कर लिए। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को, तूने बड़ा नरम आदमी को गवर्नर बनाया है, और 40,000 लोग चले गए हैं हजरत मुस्लिम बिन अकील के तरफ। यजीद 1-2 मुस्लिम बिन अकील रहे तो जो ये तुम्हारा गवर्नर बैठे हैं ना, जनाब नौवल बिन मुसीर, उनको गवर्नर हाउस से निकाल के मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे। यजीद बहुत चालाक आदमी था। उसने एक बंदे को घोड़े पर बैठाया और कहा, तू एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे एक और सूबा दिया, और जाके मुस्लिम बिन अकील के गिरफ्तार कर, और जो आदमी उनका साथ दे उनका कत्ल कर दे। आधी रात को मुंह छिपा कर आया, लोग समझे हुसैन आ गए। वो चुपके से दाखिल हुआ अंदर और सबसे पहले कूफे के गवर्नर हाउस पर कब्जा किया। इस तरह उसी समय सोए चौधरियों को बुलवाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ के उनके ऐब गिनवाए। अगले दिन सुबह हुई तो यह हाल हो गया कि आप जब कूफे के जामे मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए तो 5 से 7 हजार लोगों ने नमाज पढ़ने आए।
और जब मगरिब का वक्त आया तो चंद हजार लोग रह गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील नियत करी, हाथ बांधे तो बहुत सारे लोगों ने हाथ छोड़ दी। एक बंदे ने दूसरे बंदे से पूछा, क्यों नहीं हाथ बांधते? कहने लगा, अगर उबैदुल्लाह बिन जियाद के कोई बंदा देख लिया तो हम उससे कहेंगे हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, हम तो ऐसे ही खड़े थे। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पीछे मुड़े तो देखा पीछे कोई नहीं था। हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। अरब का रिवाज था दुश्मन को सख्त सजा दे ताकि डर रहे सब में। बहुत ऊंचा मीनार था। गवर्नर हाउस पर ऊपर ले जाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिराया गया। जब वो शहीद हो गए, शहीद होने के एक रात पहले वो खत लिख चुके थे जनाब हजरत हुसैन को कि आप आ जाए, हालात बड़े अच्छे हैं यहाँ। खत मिला तो इमाम हुसैन चल पड़े तो रास्ते में फर्जक शायर मिला। इमाम हुसैन से कहने लगा, कहाँ जा रहे हैं? फरमाए, कूफे जा रहा हूँ। कहने लगा, हुजूर ना जाइए, लोगों के दिल आपके साथ है, तलवारें आपके साथ नहीं है। और कहा, हुजूर हजरत मुस्लिम बिन अकील के लाश लटकता हुआ देख के आ रहा हूँ कूफे में। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरा भाई लटकता हुआ था, कहीं किसी के सामने झुका हुआ तो नहीं था ना? फर्जक ने कहा, नहीं। तो हुसैन फरमाते हैं, अगर मेरा भाई लटकता हुआ था तो मैं भी लटक जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए। होर बिन यजीद एक शख्स था जो एक मुख्तसर लश्कर लेकर उसने इमाम हुसैन को कई जगहों पर रोका। फिर आके रोका तो हुजूर फरमाए, जगह कौन सी है? तो फरमाया, हुजूर करबला। हुजूर ने फरमाया, बस यही खेमे लगा दो। बीबी जैनब ने पूछा इमाम हुसैन से, सारे जमाने ने रोका, ठीक है आप हक पर है, पर रोका सबने, पर आप रोके क्यों नहीं? इमाम हुसैन रो पड़े, बोले, बहन मैं रुक जाता, लेकिन रात को मैंने सपने में मुस्तफा नाना को देखा। पर उसने फरमाया, हुसैन अगर आज यह रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का तो क़यामत तक पड़ा रह जाएगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था, इसीलिए हमें भी निकलना नहीं चाहिए। फिर लोग जालिमों के सामने सर झुकाएंगे। होर बिन यजीद कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया, वजह जमीन अल्लाह की है। उसने कहा, आप बैत नहीं कर रहे हैं यजीद के, आप आगे नहीं जा पाएंगे। इमाम साहब रुक गए। जोहर का नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े शहजादे, उन्होंने अजान दी तो होर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहे, तुम मुकाबले में आए हो और नमाज पीछे अदा कर रहे हो? उन्होंने फरमाया, हुजूर मुकाबला तो तलवार से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफा का नवासा बड़ी शान वाला है। होर बिन यजीद 3 नमाजें इमाम हुसैन के पीछे अदा किया, जोहर, अशर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शरायत पेश की, आपको यहाँ घेर लिया गया है, या आप बैत करेंगे या आप जंग करने को तैयार हो जाए, दो ही बात है। इमाम हुसैन फरमाया, बैत तो मैं नहीं करूंगा, इसके अलावा जो तू कहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। उसने खत लिखा अब्दुल्ला इब्न जियाद को, नहीं मान रहे हैं, क्या करना है? ये हुसैन बिन अली है, इन्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकते। पैगाम दिया होर बिन यजीद को कि करना कुछ नहीं है, उनका पानी बंद कर दो, खाना पीना नहीं मिलेगा, उनका छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। जब होर के पास यह पैगाम आया तो उसने फरमाया, मेरा तबीयत नहीं मानता हुसैन का पानी रोकने का, दिल नहीं मानता। फिर ये सब दोबारा कहा तो उबैदुल्ला इब्न जियाद ने उमर बिन साद को 10,000 सिपाहियों के साथ भेजा। कहा, होर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के सामने। उबैदुल्ला इब्न जियाद ने कहा, तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। रे वो जगह थी जहाँ फसलें होती थी, सब सोचते थे वहाँ का गवर्नर बने। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, उमर बिन साद ने रोक लिया। 1 मुहर्रम को हुसैन आए, 7 मुहर्रम को रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। जानवर पानी पीते थे, लेकिन मुस्तफा के घराने को पानी पीने का इजाजत नहीं था। 3 दिन तक पानी रोका गया। 9 मुहर्रम को उमर बिन साद ने और लोगों को बुलाया। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था। 9 और 10 मुहर्रम के रात इमाम हुसैन से कहने लगा, आप बैत करेंगे या जंग करेंगे? इमाम हुसैन अंदर गए, बीबी जैनब से मशवरा किए, बाहर आए और फरमाए, बात वही है जो पहले दिन थी। इमाम हुसैन ने फरमाया, बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा इरादा है।
शिमर और उमर बिन साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया कल जंग करूंगा, मुझे पता है जंग के नतीजे क्या होंगे। एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब का इबादत कर लूं। शिमर और साद कहने लगे कोई मौका नहीं। पीछे से होर बिन यजीद बोला बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दे दो, तुम्हें देना पड़ेगा मौका। मौका दिया गया। होर बिन यजीद फिर मिन्नतें करा हुजूर मान जाए। हुजूर ने फरमाया मैं मानने वालों में से नहीं हूँ। सारे रात इबादत में गुजरी। इमाम हुसैन बीबी जैनब से फरमाया तू बड़ी बहन है मेरी, पीछे जो बच्चे हैं उनका हौसला बढ़ाना तेरा काम है। सुबह हुई, जंग का तबला बजने लगा। 10 मुहर्रम जुमे का दिन था। इमाम हुसैन रेत पर सजदे किए, लंबी लंबी सजदे। नमाज खत्म हुई तो होर बिन यजीद, उमर बिन साद और शिमर से कहने लगा वाकई हुसैन से लड़ोगे? पता नहीं कौन है, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम्हें नहीं पता कहने लगे। शिमर और साद कहने लगे चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। तो होर बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। होर बिन यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया और पहला शख्स जो इमाम हुसैन को रोका और पहला सर इमाम हुसैन के नाम पर इसी शख्स ने कटवाया। इसीलिए अब हम होर बिन यजीद नहीं कहते हैं होर बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हा। इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में जो शहीद हुए। अली के 4 बेटे अब्बास बिन अली और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन अली भी थे। ये हजरत अली के बच्चों का नाम है। ये सब इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। भी जैनब जो इमाम हुसैन के सगी बहन है, उनके 2 बच्चे थे ओनो मोहम्मद, वो भी शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन मैदान जंग में जाने लगे तो बीवी जैनब ने कही पहले भाई नहीं पहले बेटे जाएंगे। दोनों बेटे शहीद हो गए। हजरत कश्शाब बिन हसन वो इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने फरमाया तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई का निशानी है। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज खोल कर दिए और कहे अब्बा जी कहे थे जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो ताबीज खोल कर देखना। जब मैंने इसे खोल कर देखा तो इस पे लिखा कासिम अगर हुसैन पे कोई बड़ा मुश्किल आ जाए तो बेटा तू आगे आगे रहना, इससे हसन की कमी महसूस न हो। इमाम हुसैन पहली दफा रोए। जब ये देखा तो कहे अगर हसन का फरमान है तो तुम्हें इजाजत है, क्योंकि जिंदगी भर उनके बातें माना हूँ। जब 16 साल का कासिम मैदान में उतरे तो मैदान में हाय हाय आ गई। 3 दिन का भूखा प्यासा कासिम 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए और कहे चाचा ये यजीद के सिपाही बड़ा बुजदिल है, अगर चंद कतरे पानी मिल जाए तो सारे सर काट के लाऊंगा आपके पास। लेकिन थोड़ा देर बाद उमर बिन साद कहने लगा ये अली का पोता है, अगर अकेले अकेले जाओगे तो इन्हें शहीद नहीं कर पाओगे, एक साथ जाओ। फिर कासिम को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन गए, उन्हें उठाकर खेमों में लाए। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकले अली अकबर, जिनका चेहरा हुजूर पाक से मिलता है। वो मैदान में उतरे तो बड़े लोगों को मारे, फिर एक तीर उनके गले में भी लगा और वो भी शहीद हो गए। अली असगर 6 महीने के बच्चे भी शहीद हुआ। फिर बीवियों ने कहा अब न पानी के बिना नहीं रह जाता। जनाबे अब्बास पानी के लिए बाहर निकले और इमाम हुसैन से इजाजत लिए और जैसे ही मैदान में गए फौज को चीरते हुए नहर पर पहुंचे और पानी भर के वापस लौट ही रहे थे कि उन्हें भी शहीद कर दिया गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन ने पटका बांधा सर पर, दस्तार बांधी मौला अली के, तलवार लिए नबी पाक का, इमाम बांधा और घोड़े पर सवार हुए तो कहने लगे जैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले। फिर इमाम हुसैन निकले। तारीख ने लिखा आज जो जलवा देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। इतने लोग काटे और वापस आए और कहने लगे जरा पर्दे के पीछे से तो देख मेरी बहन, इन बुजदिलों को जरूरत ही नहीं हो रही है हुसैन के जंग में आने की। फिर इकट्ठे वार हुई। ये कौन है कटा हुआ लिबास है फटा हुआ, ये दिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है। फिर चारों तरफ से तीर बरसे तो इमाम हुसैन घोड़े से उतरे। खून बह रहा था। करबला के गर्म जमीन पर सर सजदे में किए। जब सिमर गर्दन काटने लगा तो कहे रुक जा जरा, रब से एक बात कहने दे। फिर बोले मालिक तू अब बता हुसैन से राजी है या नाराज है। तो एक आवाज आई और अल्लाह ने फरमाया तू अल्लाह से और अल्लाह तुझसे राजी है। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए।
इमाम हुसैन का सर काटकर नेजे पे रखा। जिस्म करबला पर पड़ा रहा है। औरतों को घोड़े पर बैठाकर यजीद के दरबार में ले जाया गया। यजीद इमाम हुसैन के लबों पे छड़ियां मार रहा था तो नमन बिन बशीर वहीं बैठे थे। वह बोल पड़े, यजीद बदबख्त, हाथ पीछे हटा। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इस लबों को चूमते हुए देखा है। यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी जैनब बोल पड़ी और कहने लगी, यजीद तू बकता है और कहता है तू इज्जत वाला हो गया। ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन के गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा और मेरे भाई को क़यामत तक जिक्र हुआ करेगा। वक्त गुजरने दे। जब बीबी जैनब बोल रही थी तो एक बंदे ने जनाब नुमान बिन बशीर के हाथ पकड़ के बोला, क्या अली आ गए हैं? ये तो अली का आवाज लगता है। जिब्रील अमी बोल रहे हो, जैसे हिकमत के घोड़ रोल रहे हो। दरबारे दक्षिण में बीबी जैनब का खिताब, मेंबर पर अली बोल रहे हो। बस करबला का काफिला तो मदीने पहुंच गया। 3 साल तक यजीद हुकूमत किया। शराबे आम हो गई। मक्के पर हमला हुआ, खाने काबा का गुलाब जला। मदीने पर उसने हमला किया। 3 दिन उसने मस्जिद नबी पे घोड़ा बांधा। सहाबा को निकालकर अपना इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर भी उम्मत ने उसे कबूल नहीं किया। फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा ही है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। जो सच बोले वो हुसैनी है, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए वो हुसैनी है। सुनाओ खिस्सो खैबर का तमामी अपने बच्चों को, अली के दस्ता सुन के दिलों का डर निकलता है।